اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین و سامعات، انشاءاللہ العظیم آج جو ہے آپ کے سامنے پارہ نمبر 13 کا جو ہے خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے میں سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے شروع ہو کر مکمل سورہ یوسف جو آیت نمبر 111 پر ختم ہوتی ہے، یہ اس پارے کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ رعد ہے، سورہ رعد مکمل ہے، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی مکمل ہے۔ تو یہ جو ہے، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نظم کے لحاظ سے قرآن کے جو 7 گروپ ہیں اس میں سے یہ تیسرے گروپ کی صورتیں ہیں۔ یہ گروپ جو ہے پچھلے سورہ یونس سے شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام جو ہے سورہ نور پر ہوگا۔ تو یہ تقریباً جو ہے 14 صورتیں ہیں، جس میں ابتدائی 13 صورتیں جو ہے مکی ہیں اور آخر کی نور جو ہے وہ مدنی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، کچھ علماء نے جو ہے سورہ رات کو جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کو بعض مصحفوں میں یہ مدنی سورہ ہے، لیکن اصل میں یہ موضوعات کے لحاظ سے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ مکی زندگی کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے بعض مرتبہ جو ہے التباس ہوا ہے کہ شاید یہ مدنی ہے، لیکن حالانکہ یہ تمام کی تمام مکی ہیں۔ سورہ حج کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، سورہ حج بھی اصل مکی ہے، تو صرف سورہ نور مدنی ہے اس میں۔ تو یہ جو ہے گروپ جو ہے، اس گروپ کا جو ہے مرکزی موضوع بھی ہم سب جو ہے اس کی صورتوں کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ سورہ یونس میں بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو دعوت دی ہے کہ اب بھی موقع ہے، تم سنبھل جاؤ۔ سورہ ہود میں جو ہے ایک انذار کا پہلو غالب ہے، گویا اللہ رب العزت نے ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ اب تم پانی جو ہے سر سے اوپر جا رہا ہے اور اب تمہاری جو ہے بھلائی اسی میں ہے کہ یہ نبی جو دعوت دے رہا ہے اس کی بات مان لو۔ پھر سورہ یوسف ہے اور اس کے بعد اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ گویا اس گروپ میں اگر مختصر یہ کہا جائے تو حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو حق و باطل کے درمیان جو ہے کشمکش برپا ہوئی تھی، تو اس گروپ میں یہ بتایا گیا کہ بالآخر جو ہے حق کا غلبہ ہوگا اور مشرکین مکہ تم کو جو ہے ناکامی ہوگی اور باطل جو ہے وہ سرنگو ہوگا۔ تو یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ اب اس میں سورہ یونس، سورہ ہود کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ سورہ یوسف جو ہے یہ بھی تیسرے گروپ کی جو ہے اسی طرح کی سورہ ہے جو سورہ یونس اور سورہ ہود ہے۔ اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے تسلی بھی دی گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے کہ سنت الہی جو ہے وہ یہی ہے کہ حق غالب ہوتا ہے اور باطل کو ناکامی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا کر اللہ رب العزت نے 2 طریقے سے جو ہے مشرکین مکہ کو جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکسانے میں کہ یہ نبی ذرا دیکھو تو یہ اپنی طرف سے تو قرآن نہیں گڑھ کے لے آ رہا ہے، تو چونکہ جو ہے یوسف علیہ السلام کی پوری داستان، یا یہ کہیے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے کیسے مصر میں پہنچے، وہ ظاہر سی بات ہے قریش بھی اس سے ناواقف تھے اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اس کا علم جو ہے بنی اسرائیل کو معلوم تھا، تو اس لحاظ سے ان کی طرف سے یہ ایک شوشہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اہل قریش کے سامنے ایک آئینہ دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مستقبل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مراحل پیش آنے تھے، ان پورے مراحل کو اللہ رب العزت نے اس سورہ میں کو پیش کر کے بتا دیا کہ آپ کی قوم کے ساتھ جو ہے آپ کو کیا کیا پیش آنے والا ہے
اور بالآخر जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर औज कमाल पर पहुँचे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया। बिलाखिर आप भी एक दिन इसी मक्का में जो है एक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल होंगे। तो आप देखें इसमें जो है अगर तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो इसको कहा गया है, इस सूरह यूसुफ के इब्तिदा में कल बात आई होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको क्या कहा है, अहसनुल क़सस नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। आपको इससे वाक़फ़ियत भी नहीं थी और इसको कुरान ने अहसनुल क़सस कहा है। मेरे सामईन, इसको अहसनुल क़सस क्यों कहा गया है, इसकी अगर तफसीर में देखते हैं तो मुफस्सिरीन लिखा है कि सबसे पहले तो ये है कि इस वाक़े को अहसनुल क़सस इसलिए कहा गया कि जितने भी अंबिया हैं, जितने भी नबी हैं, उनकी सरगुज़श्तों को कुरान ने सुनाया है, तो वो उसमें उनकी कौमों से जो उनकी कशमकश हुई उसकी दास्तान है, और दोनों के लिए, अहले कुरैश के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी उसमें नसीहत है कि इस आईने में तुम अपनी तस्वीर दे सकते हो। लेकिन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल क़सस कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तक़बिल में जो अपने उनकी कौम के साथ जो कुछ पेश आना था उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। तो आप अगर उसकी सीरत के हवाले से आप जानते होंगे तो आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत से पहले क्या क्या मारने की कोशिशें हुई, किस तरह जो है दारुन नदवा में मीटिंग हो रही है और जो है नजदी की शक्ल में शैतान इब्लीस हाजिर होता है और किस तरह जो है उसने राय दी, उसकी राय पर अमल होता है। फिर सारे अहले कुरैश जो है मिलकर जो है एक बार के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमला करने के लिए आपके घर के बाहर जो है वो जो है पहरा डाले हुए हैं, तलवार सौते हुए खड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते हैं। वैसे ही अल्लाह के सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको मारने के लिए किस किस तरह जो है प्लानिंग करते हैं, फिर जो है उनको कुएं में डाल देते हैं, और वो कुआं जो कि बिल्कुल जो है यानी गयाबतुल जुब कहा गया, जिसको अंधा कुआं कहें, और उसमें फिर किस तरह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उनको जो है बचाया, और बचा कर जो है फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है मिस्र की सरबराही दी। तो इस लिहाज से जो है हम देखते हैं तो इसको इसलिए भी अहसनुल क़सस कहा गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसको इसलिए भी अहसनुल क़सस कहा गया है कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ दिखला दी कि आपके साथ आपकी कौम के साथ साथ किन मराहिल से गुजरना होगा, उसी तरह जो है जो आपके दुश्मनान थे अहले कुरैश, ज़ाहिर सी बात है उसमें भी बहुत से अक्लमंद लोग थे, तो उन लोगों को भी ये इसमें अपनी तस्वीर नज़र आ गई कि हम जो है किस मुकाम पर खड़े हैं, हम जो है यूसुफ के भाइयों के मुकाम पर हैं, और जिस तरह यूसुफ के भाई नाकाम हुए उसी तरह एक दिन हम भी नाकाम होंगे। तो इसमें गोया उनको भी एक आईना दिखाया गया, इसलिए इसको अहसनुल क़सस कहा गया। एक तीसरी चीज़ ये है कि इसमें ये पूरा वाक़या जो है ज़ाहिर सी बात है एक ही नबी का पूरा वाक़या है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें हुस्न की, इश्क की चाशनी भी आपको मिलेगी। तो आम तौर से लोगों का इंटरेस्ट जो होता है इस तरह के वाक़यात को बहुत ही क्यूरियस अंदाज में उसको सुनते हैं, उसकी तज़किरे करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यहाँ देखें तो इसमें भी आपको इश्क की, हुस्न की, सबकी चाशनी इस पूरे वाक़े में आपको मिलेगी। तो गोया लेकिन इसमें जो असल चीज़ है फ़ोकस करने की मेरे सामईन, कि इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो आला किरदार है, उनकी जो आला फितरत है, उसके जो जौहर जो है आपको नुमाया नज़र आते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा है कि 7 लोग कल अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उसमें एक वो शख्स भी होगा जिसको जाहो मनसब वाली औरत ने दावत दी फहाशी की, लेकिन उसने क्या कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी किरदार वही आपको देखने को मिलेगा कि हई तलक जो है वो अल्लाह की पनाह चाहते हैं और कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपने मुझे आज नहीं बचाया तो मैं हमेशा के लिए जो है खासरीन में से हो जाऊंगा। तो ये जो है आला किरदार जो है इस लिहाज से भी इसको अहसनुल क़सस कहा गया। फिर एक चीज़ और भी है मेरे सामीन, कि इसमें आप देखें कि एक ही वाक़े हैं लेकिन मुख्तलिफ मराहिल हैं। आप देखें वहाँ मशवरा करके कि बाप इनको ज़्यादा मानते हैं,
तो चलो इनको इनको रास्ते से हटा देते हैं। और फिर उसके बाद जो है अगला मरहला होता है कुएं में डालते हैं, फिर तीसरा मरहला होता है कुएं से निकालते हैं, फिर चौथा मरहला होता है वहाँ से ले जाके बाज़ार मिस्र में बेचे जाते हैं, फिर पांचवा मरहला होता है कि अजीज़ मिस्र ने उनको अपने घर, फिर उसके बाद जो है वहाँ जो है वो फरेफ्ता होती है, फिर उसके बाद जो है अगला मरहला जेल का आता है, जिंदा का आता है, फिर जिंदा से जो है ख्वाब की ताबीर आती है। ये सारे मराहिल जो है आप देखेंगे तो इतने मराहिल, लेकिन कोई भी बेजोड़ नज़र नहीं आएगा, एक दूसरे से बिल्कुल जो है मिले हुए। तो ये जो है इससे कोई भी जो है स्टोरी सुनने वाला हो या सुनाने वाला हो तो इसको बिल्कुल फ़ौरन जो है कबूल करेगा कि ये बिल्कुल जो है सही दास्तान है और बिल्कुल ये है। तो इस लिहाज से भी इसको अहसनुल क़सस कहा गया है। फिर आखिरी जो है अहसनुल क़सस की कि इसमें जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न ज़ाहिर के औज कमाल पर पहुँचाया था, वहीं पर हुस्न बातिन से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मालामाल किया था। तो किन किन आज़माइशों से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुज़रते हैं आपने देखा होगा, लेकिन इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आला ज़रफ़ी, उसके साथ साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़हानत देखें। आप देखें कि किस किस ज़हानत के साथ जो है, ये मामूली चीज़ नहीं है कि जेल में हैं और फिर एक जो है फरिश्ता आता है, कहता है कि आपको जो है बादशाह ने बुलाया है, तो हम और आप जो है रहेंगे तो फ़ौरन जो है वहाँ से निकलने के सोचेंगे। लेकिन वहाँ पर उनकी ज़हानत देखिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था पहले उस इल्ज़ाम के बारे में जो है फ़ैसला हो जाए, फिर उसके बाद जो है अपनी बारात वो ज़ाहिर करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो ये पाकीज़गी, उनकी नबूवत की जो आला ज़रफ़ी, फिर बादशाह होने के बाद किस तरह हुस्न तदबीर से उन्होंने एक बड़े कहस से, बड़े डिज़ास्टर से जो है मिस्र को बाहर निकाला। तो और फिर आखिर में आप देखेंगे कि कुदरत के बावजूद किस तरह उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। तो ये सब एक जिंदा और जावेद उनके किरदार की मिसाल है, जिसकी वजह से इसको अहसनुल क़सस कहा गया। तो ये गोया सूरह यूसुफ जो है एक ही वाक़या है, इसमें एक ही पैगाम है कि इस रोशनी में अहले कुरैश जो है अपना अंजाम देख लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली कि आपको इन मराहिल से आपको भी गुजरना है, लेकिन बिलाखिर जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, आप भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाब होंगे। फिर उसके बाद जो है मेरे सामईन व सामियात सूरह रात शुरू होती है। सूरह रात भी आप देखें तो गोया सूरह यूसुफ की अगर मैं कहूँ कि ततिम्मा है, उसकी तकमिला है, एक जुड़वे की तरह मजमून के लिहाज से कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, सिर्फ जो है तरीक़े इस्तिदलाल में थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो मैंने जैसे कहा कि ये बिल्कुल मक्के के आखिरी दौर की सूरह है, इसकी वजह से बाद मसहफ़ में इसको मदनी भी लिखा गया है, लेकिन हकीकत में ये मक्की है। इसमें जो है सबसे पहले तो तमहीद में ये बात कही गई है, पहली बात अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। तो पहली बात ये है कि ये किताब इलाही की आयात हैं, ये कोई हवाई बात नहीं हो रही है, ये जो बात हो रही है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की बात हो रही है। फिर उसके बाद आयत नंबर 2 से अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, तो इसमें आयत नंबर 2 से 4 तक आप देखेंगे तो कायनात की उन तमाम निशानियों की तरफ इशारा है जिनसे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि इस पूरे कारखाने को चलाने वाला एक बहुत बड़ा मुदब्बिर है, जो बहुत ही मतलब ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि उसने जो है ऐसे ही बना दिया, बल्कि ये एक अजीम मकसद के लिए इस पूरे कायनात की उसने जो है उसने उसको वजूद बख्शा है, उसका ज़हूर हुआ है। तो इसलिए इसका जो असल मकसद है उसका ज़हूर भी जुज़े ला यंफक है, उसका ज़हूर भी होकर रहेगा। फिर आगे आप देखेंगे तो आयत नंबर 5 से व इन तअजब फअजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुरामन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। तो यहाँ पर जो मुनकिरीने क़यामत थे वो ताज्जुब जो करते थे कि मर जाने के बाद, सर जल जाने के बाद हम दोबारा कैसे ज़िंदा किए जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। तो उनके ताज्जुब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया है कि उनके गर्दनों में तोक तो नहीं लगा है, वो गर्दनें अपनी इधर दाएं बाएं हिलाकर देखें, हर तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सन्नाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है निशानियां मौजूद हैं, जो इस बात पर दलालत करती हैं कि ये कायनात एक मकसद के तहत वजूद में आया है और वह मकसद उसका पूरा होता है किस पर, क़यामत पर। तो इस लिहाज से
इसका एक खात्मा होगा। अगर इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कैसे हम मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे, तो सूखी हुई जो है एक छटियल मैदान को देखें जहाँ घास बिल्कुल सूख जाती है, फिर बारिश होती है, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिंदा कर देता है, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जिंदा कर देगा। और आज की साइंस के में तो ये बिल्कुल जो है बाइड नहीं है कि किस तरह जो है आज ये चीज़ साबित हो गई कि इंसान के जिस्म में सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक एक हड्डी है वो ख़त्म नहीं होती, वहीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा उसकी तख्लीक करेंगे। फिर उसके बाद जो है वहीं पर उनको थोड़ी सी धमकी भी दी है इन आयात में कि ये जो अजाब की जल्दी आप मचा रहे हैं, तो ये जो है ये जो है तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। तुम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम जिस सरकशी में मुब्तला हो उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मोहलत दे रहा है, तो इससे जो है तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेबस न समझो, बल्कि ये अल्लाह की सुन्नत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सुन्नत पूरी कर रहा है। जिस दिन उसकी सुन्नत वो पूरी हो गई और हुज्जत तमाम हुई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदा पहुँचेगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 7 से आप देखें, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा मा तगीज़ुल अरहाम। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार को कई निशानियों के ज़रिए अज़ाब इलाही का जो मुतालबा कर रहे थे उसका जवाब दिया है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आपकी जो पैगम्बराना जिम्मेदारी है वो जो है सिर्फ लोगों को अजाब से होशियार कर देना है। आपका काम अजाब लाना नहीं है, आप ये काम करते रहिए। हर कौम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को भेजा है, और हर रसूल का किरदार यही रहा है कि वो जो है वो मुबश्शिर होता था और वो इंतज़ार करता था। तो यानी क़यामत को लाना, अजाब को लाना, ये काम जो है ये अल्लाह का है, और इसका इल्म भी सिर्फ अल्लाह को है। और लेकिन इस चीज़ का इन आयात में इशारा दे दिया गया कि जिस तरह एक हामिला जो है वो जानती है कि मुझे बच्चे को जन्ना है, लेकिन कब जन्ना है उसको मालूम नहीं, उसी तरह ये इस वक्त जो दुनिया है, इस वक्त जो जिस मरहले से गुजर रहे हैं ये बिल्कुल उसी हामिला औरत की तरह है। कब जो है ये अपना यानी क़यामत आ टूटे, इसका कोई, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरे और यानी क़यामत में फासला जो है बिल्कुल जो है बहुत ही कलील है। लेकिन ये जाहिर सी बात है वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ का है। और फिर उसके बाद जो है आगे लोगों को मुखातब करके कहा गया है कि जो ज़ाहिर है, जो बातिन है, जो पोशीदा है, सबका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। इसलिए इस चीज़ से तुम घबराओ नहीं, अल्लाह को मालूम है कि कब क़यामत लानी है। फिर आप देखें 12 और 13 में वहाँ भी जो है कुछ निशानियों का जिक्र किया है कि जिस तरह बिजली कड़कती है, बिजली के कड़कने का सूरा रात उसी वजह से नाम है इसका। तो वहाँ पर बिजली के कड़कने का इशारा करके कहा गया कि जिस तरह बिजली एक लम्हे में सब कुछ फना कर देती है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी एक लम्हे में जिस दिन जो है उसकी सुन्नत तमाम हुई, इस कायनात का खात्मा कर देगा। फिर आयत नंबर 14 से 16 वहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीके से इनको एक मिसाल के ज़रिए समझाया है। आप देखें आयत नंबर 16, वहाँ जो है कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाहु कुल फत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जिस तरह जो है एक प्यासा जो है सहरा, एक लकोदक सहरा में जब चलता है तो दूर से जो उसको रेत दिखाई देती है वो एक शराब की तरह वो समझता है पानी है, और फिर जब उसके करीब जाता है तो वो पानी नहीं बल्कि एक शराब नज़र आती है। तो उसी तरह ये इनके जो झूठे खुदा बना रखे हैं, जिनसे इन्होंने इनको इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखे हैं, एक वक्त इनको ये उनको पुकारेंगे और इनका पुकारना वही होगा जैसे सदा बसेहरा होता है। तो ये इनके किसी काम नहीं आने वाले। फिर आयत नंबर 17 में आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एक उसूल ज़िक्र किया है, बहुत ही बुनियादी चीज़ है ये, हम सब के लिए भी है ये, अगर कहा जाए तो इस सूरा का कोर पॉइंट है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीके से उसूल अनफ़ा का ज़िक्र किया है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमामत जो है किस बुनियाद पर देता है, जो दुनिया को कुछ देने के लायक होता है। तो कुछ निशानियों का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात को सिर्फ नाफे लोगों को देता है जो नफ़ा बख्श होते हैं। और फिर इस चीज़ को वादे किया है कि अहले कुरैश, अब तुम अपने बातिल की वजह से, अपनी तुम गुमराहियों की वजह से तुम जो है दुनिया को कुछ देने के लायक नहीं रहे, बल्कि तुम जो है बिगाड़ दुनिया को नुकसान पहुंचाने के पहुंचा रहे हो। तो इस लिहाज से अब इस रूए ज़मीन पर तुमको कोई रहने का कोई हक नहीं है।
तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर ये कहा कि बातिल जो है वो कभी भी नफ़ा बख्श नहीं होता इंसानियत के लिए, इसलिए जो है बातिल का ख़ात्मा यकीनी है और हक़ वही जो है दुनिया के लिए राह निजात है, नफ़ा देने वाला है और वही उसी को करार है, वही बाकी बाकी रहेगा। अब फिर इसके बाद मेरे सामाईन आगे आते हैं तो 18 से 25 में इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी है कि आपकी दावत की जो मुखालफत और जो मुखालफत हो रही है और उसकी मज़ाहमत हो रही है, तो आप जो है इससे घबराइए मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़रीब इन पर लानत होगी। फिर उसके बाद आयत नंबर 26 में आप देखेंगे तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शुबहे को आज भी ये शुबहात हमारे दरमियान है कि गज़ा के लोग पिट रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नऊज़ बिल्लाह कहाँ बैठा हुआ है। तो इस शुबहे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर देखें तो आप आयत नंबर 26 को देखें, अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु व फ़रहू बिल हयाति दुनिया वल हयातु दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मताउन। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शुबहे को ज़ाहिर करते हुए बताया है कि अहले ईमान ही जो है बिलाखिर कामयाब होंगे, लेकिन अगर जो है तुम्हें नज़र आता है कि रिज़्क़ और फ़ज़ल सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उन लोगों के हाथों में है जो अल्लाह के और उसके रसूल के मुखालिफ हैं और उसकी मुज़ाहमत में सरगर्म है, तो ये जो है वक्ती है, ये जो है एक धोखा है और ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आज़माइश है। तो इसको हमें जो है एक सबक इससे लेना चाहिए। दूसरी फिर आगे हम आयत में आते हैं तो आयत नंबर 27 से 32 तक उसमें जो कुफ़ार मुख्तलिफ मोजज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते थे, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया है कि दिलों को जो मुतमईन करने वाली चीज़ है वो तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की सिफ़ात है, अल्लाह की याद है, तुम उस पर गौर फ़िक्र करो। उसके ज़रिए जो है ये जो तुम मोजज़े बार बार मांग रहे हो, तो मोजज़े जो है ये तुम्हारी जो है हिदायत के लिए जो है कोई हल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी जो है और शामत को दावत देने वाले हैं। फिर उसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है कि ये जो कुछ जो है आपको पेश आ रहा है इनके हाथों, ये आप पहली बार नहीं आ रहा है, इससे पहले जो ना अम्बिया गुजरे हैं रसूल उनके साथ भी इस तरह पेश आ चुका है। अल्लाह की वही आप उनको सुनाते रहिए और अल्लाह की ज़ात पर आप भरोसा रखिए। मुसलमानों को भी ये तसल्ली दी गई है इन आयात में कि आप जो है ये न समझो कि इनको मोजज़े दिखा देंगे अगर हम तो ये ईमान लाएंगे, बल्कि ऐसा कुरान भी अगर ला दिया जाए जिसको सुन के पहाड़ चलने लगें और जो है बोलने लगें मुर्दे, तो तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसलिए आप जो है इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। फिर अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान के मामले में कभी जबर को पसंद नहीं करता। अगर वो जबर को पसंद करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबको हिदायत का रास्ता दे देता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर तसल्ली दी गई है कि ये जिस तरह आपका मजाक उड़ा रहे हैं, पिछले अम्बिया का भी मजाक उड़ाया जा चुका है, बिलाखिर जो है अज़ाब जो है नमूदार हुआ, अनकरीब जो है वो अज़ाब जो बदर का है इनका भी इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद जो है फिर आयत नंबर 33 से 35 है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरक और शुरका की जो है नफ़ी की है कि ये जो शफ़ात का वजूद बना रहे हैं इसके ज़रिए, और ये जो है इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, ये सिर्फ़ एक धोखे में मुब्तला हैं और जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला रास्ता है। और ये कल क़यामत के दिन इनके जो शरीक होंगे, जो शफ़ी होंगे, इनको जो है ये बुलाते रहेंगे लेकिन ये इनके कोई काम नहीं आएंगे। इसके बिलमुकाबिल मुसलमानों को और जो अहले ईमान हैं उनको कहा गया कि जन्नत की अबदी नेमतें इनके लिए हैं और सिर्फ़ इन्हीं का हिस्सा बने रहेंगी। फिर आखिर में जो है आयत नंबर 36 से 37 जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के दो ग्रोह का ज़िक्र किया है। एक ग्रोह वो है जिसने इस नबी की बात जब कुरान को सुना तो वो हक़ पर कायम थे, इसलिए उन्होंने खैर मक़दम किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक ग्रोह वो था जो अपनी बिदात की वजह से, अपनी गुमराहियों की वजह से वो मुखालिफ बन गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये दावत दे रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बहरहाल जो है जो बिदात में मुब्तला हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ज पहुँचाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनकरीब उनको पकड़ेगा। आप जो है वक्त का इंतज़ार कीजिए। फिर आखिर की जो आयत हैं उसमें अल्लाह
کہ نبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफिन थे उनके एतराज़ात या उनके मुतालबात जो है उसकी उनको उसका जवाब दिया गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है कि नबी जो है हमेशा बंदों ही में से, इंसानों ही में से आता है। कभी जो है कोई फरिश्ता या आसमानी मखलूक जो है वो बशीर बनकर नहीं आता। इससे पहले भी जो अंबिया आए थे उनकी भी बीवियां थी, वो भी जो है इंसानों ही में से थे। तो इसलिए जो है मोजज़े जो है ये लाना जो है ये अल्लाह का काम है। और जिन बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको डराने के लिए आपको कह रहा है, आप उनको डराते रहिए। अगर ये इन लोगों की आँखें खुलती हैं तो ठीक है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीके से धमकी दिया आखिर की आयत में कि हम देख रहे हैं, अगर ये भी अपनी आँखें खोल कर देखें तो ये बतदरीज जो है अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। ये जो आयत है ननकुस मिन अतराफ अर्द मिन अतराफिहा, आयत नंबर, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीके से इनको धमकी दी है कि अनकरीब जो है अब इनका हम खात्मा। अवलम यरो अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही। क्या ये देखते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन को इनके अतराफ में धीरे धीरे इनका दायरा तंग कर रहा है। तो गोया इस तरह जो है मुफस्सरीन लिखते हैं कि धीरे धीरे जो अहले कुरैश थे उनका असर और रसूख जो था बाहर की दुनिया में, वो धीरे धीरे कम हो रहा था उस वक्त। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अनकरीब अब हम इनको घेरे में लेने वाले हैं और ये अपने अंजाम काम को पहुंचने वाले हैं। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है अपना काम बराबर जारी रखिए। आप जो है इस किताब से के ज़रिए लोगों को इंदार करते रहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। और आप नबी हैं या नहीं हैं इसके लिए अल्लाह की गवाही और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी गवाही आपके लिए काफ़ी है। ये अगर कबूल करें तभी आप नबी होंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे दोस्तों सूरह इब्राहीम जो है इसके बाद है। सूरह इब्राहीम जो है ये दरअसल जो है जो मैंने अभी एक आयत पढ़ी है, अवलम यरो अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, ये जो कुरैश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने धमकी दी थी और मुसलमानों को एक तरीके से बशारत दी थी, अब इस सूरह में आपको देखेंगे तो ये खुल कर आ गई है। तो गोया ये कि कुरैश के सामने जो है हक़ व बातिल की कशमकश जो है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल खोल के रख दिया कि अब बातिल के जो अलमबरदार हैं उनकी कोई बुनियाद, कोई ज़मीन अब बाकी नहीं बची है। और ये धीरे धीरे जो है ये घेरे में आ रहे हैं। और उसकी मिसाल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी कि इनकी मिसाल जो है एक शजरे खबीसा की है जो किसी भी वक्त एक जुम्बिश में उखाड़ फेंका जा सकता है। अब जो है अब तक जो ये लोग बाकी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई मजबूत जड़ है, बल्कि ये बाकी इसलिए हैं कि इसको उखाड़ने वाले हाथ अभी तक नहीं थे। अब उखाड़ने वाले हाथ मुसलमानों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जमात बर्पा कर दी है। तो अनकरीब देखेंगे कि ये किस तरह जो है इनको इस रुए ज़मीन से उखाड़ फेंकेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके बिलमुकाबिल इस्लाम की या कलमे तैयबा की मिसाल जो है एक शजर तैयबा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है कि जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, शाखें आसमान को फैली हुई हैं। अल्लाह ताला अहले ईमान को इस दुनिया में इसी तरह मुस्तहकम करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम, और आखिरत में भी यही लोग कामयाब होंगे। लेकिन उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर आप देखें तो शर्त रखी है कि सब्र और इस्तिक़ामत के साथ उनको आगे बढ़ना होगा। अक्सर यही चीज़ है जो एक इस्लामी मोमेंट जब उठती है तो उसमें ये फुक़दान नज़र आता है कि हम जो है बहुत जल्द नताइज के पीछे जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा बशर्ते कि वो सब्र और इस्तिक़ामत के साथ जो है इन आज़माइशों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें। तो हकीकत में जो तारीख़ की रोशनी में जो हकीकत है वो यही है कि बिलाखिर कलमे तैयबा को कामयाबी होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है और आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। और उसकी मुद्दा जो है मेरे नाज़रीन यही है कि इस सरगुज़श्त पूरी सुनने का जो असल मकसद यही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त ख़ास तौर से उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले कुरैश के सामने ज़िक्र इसलिए किया कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पर थे, कहाँ फ़िलिस्तीन और कहाँ वादी गैर ज़ी ज़रा। एक आबाद जगह से उन्होंने गैर आबाद जगह पर कूच किया। किस लिए कूच किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि इस सरज़मीन को कलमे तैयबा की बुनियाद पर आबाद करें। उनकी दुआओं को तुम याद करो, उनके दिल के जो अरमान थे
جو ذریتن صالحتن کے جو دعا ہے ان کی، وہ سب ان اپنے سامنے رکھو۔ تو اس کے بعد جو ہے اہل قریش کو کہا گیا کہ جو ان کا مقصود تھا اس سے بالکل تم ہٹ چکے ہو، اور اپنی تاریخ کو تم دیکھو، کس تاریخ کہ کیا تمہاری تاریخ تھی اور کس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو اٹھایا تھا، لیکن آج جو ہے تم نے وہاں جو ہے تم کہاں پہنچ گئے۔ تو اس لحاظ سے سورہ ابراہیم میں گویا اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں گے تو ایک طریقے سے اہل قریش کو جو ہے گویا اس میں میرے خیال سے اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس میں بار بار جو چیزیں ہیں، جو گروپ ہے، آیت نمبر ایک میں جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس کتاب کے اتارے جانے کے مقصد کو اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے جو میں نے بات کہی ہے، آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا گیا کہ تم ان کی جو آرزوئیں تھیں اس آرزوؤں کو پہچانو اور تم اصل کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر آخر میں 18 سے 22 تک دیکھیں گے تو کفار و مشرکین کو اللہ رب العزت نے کا جو حشر ہونا ہے کہ یہ ایک دن خاک میں مل جائیں گے، اور جو ہے اس کے لیڈران جو ہے ان پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے اور کہا کہ یہ سب شیطان کے پیروکار ہیں، ان سے ہم بھی اعلان برات کرتے ہیں، اور جتنے اہل ایمان ہیں جتنے جو ہے وہ اعلان برات کریں۔ پھر جو ہے 23 سے لے کے 27 تک آپ دیکھیں گے تو اہل ایمان کا جو آخرت میں ان کا استقبال ہوگا، جس طرح ان کو مبارکبادی دی جائے گی، تحیہ ہوگا، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے بڑی جو ہے سرفرازی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے جو انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت اہل ایمان کے مقدر میں لکھا ہے۔ پھر آخر میں 28 سے 34 تک قریش کے لیڈران کو بار بار انذار کیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک نعمت حرم کی شکل میں دی تھی، اب اس نبی کی شکل میں تم کو دی ہے، لیکن تم بار بار جو ہے شرک کے رویے پر جو ہے گامزن ہو، تو تم جو ہے اب جہنم کے گھاٹ اتارے جانے والے ہو۔ اور پھر ضمناً جو ہے مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ تم جو ہے جو بھی نماز کو بھی قائم کرو، خرچ بھی کرو، اور جو مقصود تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اس مقصد کو تم ہمیشہ ساتھ رکھنا، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اب جو ہے عنقریب جو ہے سرزمین مکہ کو تم چھوڑ کر جو ہے دارالہجرت مدینہ جاؤ گے، لیکن تم کو ایک دن تم لوٹو گے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور تمنائیں تھیں اس کو جو ہے انشاءاللہ العظیم یہ نبی اور اس کے پیروکار ایک دن مل کر پورا کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے گویا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک کھلی بشارت دے دی، اور پھر خاتمہ سورہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو تنبیہ کی اور انذار کی کہ اب جو ہے تم اگر پلٹ سکتے ہو تو پلٹو، ورنہ اپنے بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر جو ہے یہ سورہ ابراہیم ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جو باتیں آج کہی گئی ہیں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو حفظ جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو ہے یہ جو ہے ایک انقلابی جو کتاب ہے، اس کو اسی لحاظ سے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔